Today's topic is Debye-Huckel theory. After the failure of Ostwald dilution law for a strong electrolyte, Debye-Huckel in 1923 gave the theory for a strong electrolyte, and which is very satisfactory both qualitatively and quantitatively. Now for that he made certain assumption. Number one, the ionization is 100% at all dilution. किसी भी डाइल्यूशन में जो आयंस टूटेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल 100% आयोनाइज. सेकेंड, two forces will act in an electrolyte which are electrical force and resistant or viscous drag. जितना ज़्यादा विस्कस इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज़्यादा जो है ये विस्कस ड्रैग होगा या रेजिस्टेंट होगा. तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड विस्कस ड्रैग. और यही रिजल्टेंट फोर्स is the ion's velocity, in which velocity of the ions depends. Third, the force is governed by the Coulomb's law. जो ions के बीच में force होगा उसके बीच वो जो है Coulomb law उसमें applicable होगा, which is F is directly proportional to Q1 Q2 over R square. Fourth, each ion is surrounded by a oppositively charged ion and is known as आयनिक एटमॉस्फेयर. अगर नेगेटिव चार्ज है वो सराउंड होगा पॉजिटिव चार्ज से, और अगर पॉजिटिव चार्ज है वो सराउंड होगा नेगेटिव चार्ज से, और यही आपका क्या कहलाता है, आयनिक एटमॉस्फेयर कहलाता है. नाउ कम टू द डेरिवेशन पार्ट ऑफ इट. डेरिवेशन, लेट अस सपोज दैट psi is our electrical potential. What is psi? Electrical potential. And this electrical potential is nothing but the amount of work done to bring ion or charge from infinity to a particular point. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, नाउ वी फर्स्ट कंसिडर इट फॉर पॉजिटिव चार्ज. द वर्क डन फॉर पॉजिटिव चार्ज whose valency is Z पॉजिटिव वैलेंसी है, एंड जो उसमें चार्ज है दैट इज एप्सिलॉन. ऐसी तो उसके लिए वर्क डन या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वर्क डन विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल गिवन एज Z पॉजिटिव एप्सिलॉन एंड साई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ऐसी नेगेटिव चार्ज के लिए आप कहा जाएगा Z नेगेटिव एप्सिलॉन साई. ये दोनों जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया. Now in case of Debye-Huckel we always consider the dilute solution. So whenever we are considering dilute solution, the distance between the ions positive और negative ion के बीच की जो distance है ये जो है बहुत large होगी, very very large, and thus the psi can be taken as 0. Now again we are considering if n positive naught and n negative naught are the concentration of positive and negative ions per unit volume in that dilute solution, then according to Maxwell-Boltzmann distribution law, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं Maxwell-Boltzmann distribution law, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो फॉर पार्टिकल्स इन द फील्ड ऑफ वेरिंग पोटेंशियल जो दिया जाएगा n पॉजिटिव इक्वल्स टू n positive naught e to the power minus Z epsilon psi over kt.
दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1. ऐसी नेगेटिव आयन के लिए n नेगेटिव विल बी इक्वल्स टू n नेगेटिव नॉट e टू द पावर माइनस z, ये पॉजिटिव ले रहे हैं, ये नेगेटिव है, एप्सिलॉन psi over kt. This is your equation number 2. This is from the Maxwell-Boltzmann distribution law, and here this is the amount of work done and k is the Boltzmann constant. From these two relations or equations we can say that there are on an average more negative ions than positive ions in the vicinity of any positive ions and vice versa. पॉजिटिव आयंस अगर है उसके चारों ओर नेगेटिव आयन होंगे और जो नेगेटिव आयन है उसके चारों ओर पॉजिटिव आयंस होंगे, विच इज नथिंग बट द फोर्थ एजम्पशन मेड बाय डी बाय हकल. तो अब दैट इज आयनिक एटमॉस्फेयर के बारे में जो कहा गया था. नाउ वी विल डिफाइन वन मोर पॉइंट हियर, दैट इज चार्ज डेंसिटी. And the charge density is given by rho e and is nothing but the excess of positive or negative electricity per unit volume at that point from definition. Now as this will be given as rho e equals to n positive z positive epsilon minus n negative z negative epsilon. N positive, Z positive, epsilon is for positive charge and this is for negative charge. And the difference will give you the charge density. Now as we know that the value of N positive and N negative is given by equation number 1 and 2. So putting these values in this equation we get rho e equals to n positive naught e negative minus z positive epsilon psi over k t z positive epsilon minus n minus naught e to the power minus z negative epsilon psi over kt z negative epsilons. This is your equation number 3. Now further we will simplify this the charge density first for univalent. इसको हम simplify करेंगे और पहले हम univalent electrolyte के लिए इसको find out करेंगे. Then we will journalize this univalent electrolyte जैसे कि NaCl होता है. तो उस केस में आपका Z positive is equals to Z negative is equals to 1 and number of ions will be same. So N positive naught is equals to N negative naught is equals to suppose N. Now this the equation number 3 will become, we can rewrite it like this: P naught rho e is equals to N आ जाएगा एप्सिलॉन, दोनों n होंगे तो इसलिए कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन कॉमन है ही, e टू द पावर माइनस ई, z पॉजिटिव विल बिकम 1 तो एप्सिलॉन psi ओवर के टी माइनस 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 प्लस हो जाएगा e टू द पावर psi ओवर के टी. This is your equation number 4. Further equation number 4 is in the form of exponential series. जो ये equation है ये exponential series के form में, तो इसको solve करने के लिए हम लोग exponential series consider करेंगे, which is e to the power minus x is equals to, this is an exponential series which can be expanded like this: e to the power minus x equals to 1 minus x upon 1 factorial minus x square 2 factorial minus x cube 3 factorial and so on. Now we will expand this in the form of this series. Now as we know the value of epsilon psi over kt is very small, so
if we open this with this exponential series, this is the exponential series, and if we open this with this exponential series, then the value of higher terms, that is the terms x square over 2 factorial, x cube over 3 factorial, these are higher terms, will be very small and these can be neglected. तो इसलिए जो है हम जो है जब ये सीरीज ओपन करेंगे तो हमारे पास हम सिर्फ फर्स्ट टू थिंग्स को टर्म्स को कंसिडर करेंगे, दैट इज अगर हम उसको सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड करें, इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो सीरीज के फॉर्म में एन एप्साइलेंस तो है ही, अंदर सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड किया तो 1 माइनस एप्साइलेंस साई अपॉन के टी, और हायर टर्म्स हमने नेग्लेक्ट कर दी, बाकी की एप्साइलन साई ओवर के टी का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 इस तरीके से आगे की टर्म आएगी, बट क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल है वी कैन नेग्लेक्ट इट. ऐसी जो दूसरा फैक्टर है हमारा, दैट इज ये वाला फैक्टर माइनस वाला टर्म, इसको भी हम इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे, और हमारे पास क्योंकि उसके आउटसाइड में माइनस है और ये ई टू द पावर एक्स के लिफ्ट फॉर्म में होगा, तो इसलिए जो है -1 माइनस एप्सिलॉन साई ओवर के टी इस तरीके से आएगा, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया. नाउ इट विल कम एज एन एप्सिलॉन इनटू माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन साई over kt, which can be written as charge density will be equals to -2 epsilon square psi n upon kt. This is for the univalent electrolyte. Now as we journalize this formula, this is for univalent electrolyte. Now if we journalize this formula for polyvalent electrolyte like trivalent, for example for trivalent, that is AlCl3, then Z1 Z positive is equals to Z negative is not equals to 1. यहाँ पे 1 नहीं होगा. Now so from our equation number 3 we take a form, जो equation number 3 आपकी है वो form इस तरीके की ले लेगी. where is equation number 3? This is our equation number 3 here. ये अब फॉर्म क्या लेगी, यहाँ पे अब Z1 Z2 जो Z नेगेटिव और Z पॉजिटिव जो है 1 नहीं लिया जाएगा, तो अब जो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, रो ई विल बी इक्वल्स टू समेशन एप्सिलॉन समेशन ऑफ एन आई Z आई ई टू द पावर माइनस Z आई epsilon psi over kt. This is your equation number 6. Now for n positive naught is equals to n negative naught, here we are taking ni, and for z positive and z negative we are taking z I. Now we will expand equation number 6 according to the formula, that is जो exponential series का formula था उसी के फॉर्म में हम एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास आएगा रो ई इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन आई जेड आई एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस जेड आई ई psi upon k t. इसको further simplifying this we get rho e equals to summation of n I z I epsilon minus summation of n I z I square epsilon square psi over kt. This will equation number 7. Fifth, now as the first term in equation number 7, this is the first term in equation number 7, we are having single zi, so single zi है, but
in electrolytic solution, in order to maintain the electrical neutrality, always positive ions are compensated by negative ions. मीन्स जितने पॉजिटिव आयंस होंगे उतने नेगेटिव आयन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, एंड नेगेटिव आयंस आर कंपनसेटेड बाय पॉजिटिव आयंस. तो इसलिए जो है हम फर्स्ट जो आपका टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं या ओमिट करना पड़ेगा. तो सेवेंथ जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, रो ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाहर आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर साई ओवर के टी समीशन ऑफ एन आई जेड आई स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर टर्म है. हियर वन जो जेड आई है वी कैन टेक पॉजिटिव और एक को हम नेगेटिव ले सकते हैं. अब ये जो है आपकी इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी. इक्वेशन नंबर 8 जो है इज अ जर्नलाइज एक्सप्रेशन फॉर चार्ज डेंसिटी. ये जो है जर्नलाइज एक्सप्रेशन है, यानी कि आप इसको यूनिवेलेंट पॉलीवेलेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए ले सकते हैं. नाउ फर्दर वी हैव टू इंट्रोड्यूस द पॉइसन लॉ इक्वेशन. पॉइसन इक्वेशन यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे विच विल रिलेट द change in electrical potential at different point with charge density. Why we are introducing Poisson equation here? To relate. यहाँ पे हम क्या इंट्रोड्यूस करें, पॉइसन इक्वेशन इंट्रोड्यूस करें. वाई? फॉर रिलेटिंग द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल at different point with charge density. तो पॉइसन इक्वेशन आपकी है डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर दैट इक्वल्स टू -4 पाई रो ई अपॉन D, where D is the dielectric constant of the medium. ये आपकी इक्वेशन है. उसके बाद एज जो ये है ये आपको पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई. अब क्योंकि आपको पता है कि आयंस आर स्फेरिकल इन शेप, तो हमें यहाँ पे पोलर ये जो लीनियर कोऑर्डिनेट है इसको रिप्लेस करके पोलर कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा एंड साई फाई. तो अब इसको जो है यहाँ पे क्योंकि एक स्फेरिकल जो आयंस है आर स्फेरिकल इन शेप और वो उसकी जो इसलिए जो है हम वी आर नॉट कंसर्न विद द एंगल्स जो है वो बराबर रहेंगे. तो इसलिए जो है डेल साई ओवर डेल थीटा एंड डेल साई ओवर डेल फाई विल बी इक्वल्स टू 0 एंड वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द आयन दैट इज आर के लिए हम लोग इसको आगे को एक्सपेंड करेंगे दैट इज डी. और हम जानते हैं 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर इंटू आर स्क्वायर डेल साई ओवर डेल आर इज इक्वल्स टू, ये इसको अगर रिप्लेस करें -4 पाई रो ई अपॉन डी. नाउ इसी को अगर हम यहाँ पे जो है वैल्यू रखेंगे रो ई की फ्रॉम अबव इक्वेशन, तो 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर इंटू आर स्क्वायर डेल साई ओवर डेल आर that will be equals to 4 pi epsilon square summation of n I psi भी होगा एप्सिलॉन का स्क्वायर साई एन आई जेड आई स्क्वायर अपॉन डी के टी. So our equation is like this, del 1/r square del over del r into r square del y over del r is equals to 4 pi psi square upon d k t psi summation of n I
जेड आई स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन थी। अब यहाँ पे जो है हम इसको रिप्लेस करके, इस टर्म को रिप्लेस करके कापा का इंट्रोड्यूस करते हैं, वह कापा जो है इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर समेशन ऑफ एन आई जेड आई स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे इस रिप्लेस करेंगे इन दिस इक्वेशन। सो अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो बन जाएगी इक्वेशन, दैट इज़ 1/r² डेल ओवर डेल आर अपॉन इंटू r² डेल फाई ओवर डेल आर, दैट इक्वल्स टू 4। ये पूरा रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा कापा का स्क्वायर फाई। और इस जो ये इक्वेशन है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन एज, कैन बी साई इक्वल्स टू ए e to the power minus kr upon r plus b e to the power minus kr upon r. This is the generalized solution of this equation. ये आपका इसका generalized solution है. Now to calculate where a and b are the integration constant, और इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं एज r इंक्रीजेस साई डिक्रीजेस, क्योंकि अपोज इससे पता चल रहा है अगर हम r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो साई की डिक्रीज करेगी एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन आयन। तो जो है r साई मस्ट अप्रोच 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, सो द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट a एंड b मस्ट बी 0। हेंस इक्वेशन नंबर जो आपकी ये है, इक्वेशन बिकम्स एज psi equals to a e to the power minus kr upon r. The value of a can be calculated by putting k equals to 0. The concentration becomes 0 and therefore the potential is simply that of the single ion in the absence of any other charges. तो सिर्फ सिंगल आयन के कारण होगा, तो psi will be equals to zi e upon dr. तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से ये आपकी ये वाली जो इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 13। ऐसी फर्दर ऊपर कर लीजिएगा। तो उसके बाद ये जो है आपकी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 14। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 इट विल बिकम साई इक्वल्स टू a अपॉन r. नाउ एलिमिनेटिंग साई फ्रॉम 14 एंड 15, 14 एंड 15 से साई को एलिमिनेट करेंगे तो दिस विल इक्वल्स टू दिस, जेड आई ई अपॉन डी आर विल बी इक्वल्स टू ए अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो यानी कि ए विल बी इक्वल्स टू जेड आई ई अपॉन डी. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 13, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 13, सो साई विल बिकम Z I E Z I E to the power minus e to the power minus k r अपॉन डी आर. इसको फिर फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे वही एक्सपोनेंशियल सीरीज के टर्म में, तो हमारे पास आता है साई इक्वल्स टू जेड आई एप्सिलॉन अपॉन डी आर इंटू 1 माइनस के आर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक प्लस एक माइनस का टर्म आएगा, क्योंकि आयन से एक पॉजिटिव और नेगेटिव व्यवस्था. As k is a function of the concentration, it means that the higher powers kr may be neglected for very dilute solution. जो higher powers है उनको neglect किया जा सकता है. So जो आपकी equation है will become as psi equals to z I e over d r 1 minus k r, or we can say z I e upon dr minus z I e k over d.
So this is your final equation, and it follows the first term ZIE over dr represent the potential at a distance r due to a single ion of charge ZIE in the medium of dielectric constant d, and the second term, that is minus ZIE k over d, is then potential due to the other ion, that is those forming the आयनिक एटमॉस्फेयर. ये जो है पहले आयन के कारण है, और उसके चारों ओर जो आयनिक एटमॉस्फेयर अपोजिटिवली चार्ज आयन बना रहे हैं, ये वाला उसके कारण है पोटेंशियल. तो इट इज दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल विच इज रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन. तो ये आपका डी बाय हकल थ्योरी है. इसको का जो नेक्स्ट जो है लिमिटिंग लॉ, वी विल डिस्कस इट लेटर.